Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrita Chandulia. Students, today we are going to continue chapter number 13 of class 7 science, that is motion and time. Students, in previous video of this chapter we already had discussed about motion and its types. We discussed about how to measure the time, and we also discussed about what are the units for time and speed. We had a talk about how we can calculate the speed. Okay, in today's video we are going to discuss about how to measure the speed and a very important topic, that is distance time graph. Okay, so let's begin today's video with measuring speed. Students, for understanding this, let's perform or let's do a activity. What you have to do, just have a look on the screen. We have to take a ball and we have to draw a line. Fine, just have a look here. यहाँ हमने एक line खींच रखी है. You can draw this line with the help of chalk or with the help of line. Okay, so what you have to do, you have to throw a ball. ठीक है, अब आपको बॉल को यहाँ से फेंकना है. बॉल को जब आप थ्रो करते हैं, then when the ball cross this line, fine, and when the ball gains its resting position, मतलब कि जहाँ पर बॉल आकर रुक जाती है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. Then student, you have to measure this distance. ठीक है, जहाँ से बॉल ने लाइन क्रॉस करी और जहाँ पर आके बॉल रुक गई, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, यू कैन यूज द स्केल और यू कैन यूज द मेजरिंग टेप. फाइन, एंड स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड. द सिंपल फॉर्मूला, द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टाइम टेकन. फाइन, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉल ने ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया. फाइन, समझ में आ गया. जैसे ही बॉल यहाँ रीच होती है, यहाँ पहुँचती है, देन यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग द टाइम. Fine, and as the ball reaches, as the ball gains its resting position, when it becomes stationary, then you have to stop your watch. तो आपके पास टाइम भी हो गया, आपके पास distance भी हो गया. So what is the formula to calculate the speed? It is simple, the distance covered by the object and time taken. Is that clear everybody? And you also remember that कि हम जो units use करते हैं वो कौन से units use करते हैं? It is kilometer per hour और meter per second. समझ में आ गया? These are the standard units. अब किसी भी object की speed तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. वो कितनी तेज हो सकती है, वो कितनी कम हो सकती है? स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक. रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. इजंट अमेजिंग कि 1 सेकेंड के अंदर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना. फाइन, ये इतनी फास्ट हो सकती है. ऑन द अदर हैंड, अ टॉर्टॉइस कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इजंट इंटरेस्टिंग? सो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना भी तेज और कितना भी कम हो सकता है. Is that clear, students? So students, once we know the speed of an object, then it is very easy for us to calculate the distance covered by the object in the given time, isn't it? We already had discussed this in our previous video कि अगर हमारे पास speed है और time है, then it is easy for us to calculate the distance of the object that it covered. Okay, and it is easy to calculate the time. So what are the formula to calculate the distance? It is speed into time. Fine, and to calculate the time taken, it is distance upon speed. So always remember that how you can calculate speed, time taken and distance covered. Is that clear everybody? So students, it is easy to calculate speed,
distance covered and time taken. Now let us learn how we can measure the speed and distance in our vehicles. देखो आपके घर में जो स्कूटर्स हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं या कार्स हैं या जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में जो हमारे व्हीकल्स यूज़ होते हैं, आइदर दे आर द बसेस, ऑटो रिक्शास, व्हाटएवर, फाइन, इनके अंदर इनके डैशबोर्ड में ऐसे कुछ मीटर्स होते हैं. समझ में आया? ये जो मीटर्स हैं ये क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीटर्स देयर. वन इज स्पीडोमीटर एंड सेकंड वन इज ऑडोमीटर. अब जो हमारा स्पीडोमीटर होता है ना बेटा, जस्ट हैव अ लुक. इट इज जस्ट लुकिंग लाइक दिस वन. Fine, and here on speedometer somewhere it is written that kilometer per hour. Fine, and that meter is known as स्पीडोमीटर. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पीड को मेजर करता है. इज दैट क्लियर? सो इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इनटू किलोमीटर पर आवर. आज जाके अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार के डैशबोर्ड पे देखिएगा, जो स्पीडोमीटर है उस पे किलोमीटर पर आवर लिखा होता है. ठीक है. अब स्पीडोमीटर के साथ साथ एक मीटर और होता है. हैव अ लुक हियर. ये आपका स्पीडोमीटर है. ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है. इसके जस्ट ऊपर एक मीटर होता है जिसके अंदर जो नंबर्स हैं दे आर कीप चेंजिंग. ठीक है, जैसे जैसे आपकी कार या आपका जो भी व्हीकल है वो डिस्टेंस कवर करता है, वैसे वैसे इस मीटर के अंदर वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं. और यहाँ पर लिखा होता है किलोमीटर. दैट मीन्स दिस मीटर इज मेजरिंग द डिस्टेंस विच इज़ कवर्ड बाय योर व्हीकल. Fine, and here we are measuring the distance in kilometer. Fine. अब इसको हम S नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हम हमेशा यूनिट्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल एंड इट इज नोन एज ऑडोमीटर. ऑडोमीटर कैलकुलेट करता है, मेजर करता है डिस्टेंस. स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड ऑफ द व्हीकल. इज दैट क्लियर एवरीबडी? अब हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन दिस टाइप ऑफ ग्राफ. देखो, इट इज अ ग्राफ विच इज शोइंग द रन स्कोर्ड बाय अ टीम इन each over. Fine, and this is the pie chart graph which is showing the composition of air that you already had drawn in your previous classes, in your primary classes, air composition. You might have seen this type of graph, that is the line graph. ठीक है, and in this line graph there is the graph which is showing change in the weight of the man with its एज. फाइन. अब ये जो सारे के सारे जो ग्राफ थे, पाई ग्राफ, आपका लाइन ग्राफ, आपका बार ग्राफ, ये ग्राफ होता क्या है बेसिकली? स्टूडेंट, ग्राफ इज अ डायग्राम विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज. ठीक है, अब पीछे के सारे ग्राफ्स को एक बार वापस से देखो. ये जो बार ग्राफ है इसके अंदर हम ओवर और रन्स के बीच में दो क्वांटिटीज हो गई. फाइन, समझ में आ रहा है? और आपका ये जो लाइन ग्राफ था इसके अंदर भी दो क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट क्या है? दिस वन इज द एज ऑफ द पर्सन एंड दिस वन इज द वेट ऑफ द पर्सन. इट इज keep changing. Fine. So we can say a graph is a diagram which shows the relationship between two quantities. Fine. Or we can say that a graph is a diagram that represent any data or any value in organized manner. अब जो हमारा distance time graph है, it is a type of line graph. फाइन स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मोशन की, दैट मीन्स व्हेन द motion of object can be presented in the pictorial form, it is the distance time graph. Students, let us learn how we can draw a distance time graph. Okay, student, first we will take a sheet of graph paper, and you know from where you get the sheet of ग्राफ पेपर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर पे दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. देखो,
हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, दिस इज एक्स डैश, फाइन। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस। अब हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, दिस इज वाई एंड वाई डैश, फाइन क्लास। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज O, दैट इज द origin point. Is it clear everybody? X axis क्या है, Y axis क्या है, ठीक है। अब students, what we have to do, the point of intersection of X O dash, ठीक है, this is what, this is X O dash and this is Y O Y dash is known as origin O. Is it clear everyone? The two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. अब हम इन दो axes पे ही उन दोनों quantities को draw करेंगे. Is that clear everyone? We shown the positive values on the x axis along OX. देखो हम जो पॉजिटिव, अब ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ के हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का बना सकते हैं। अब हमें पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस पे नंबर्स हैं उनको बनाना है, तो वो हम इस एक्सिस पे बनाएंगे। इज़ दैट क्लियर? हमें पॉजिटिव वाई पे जो नंबर्स इंडिकेट करने हैं वो हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ example. Have a look on the table. Here we are having the time and the distance, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, हमारे पास जो टाइम है वो है मिनट्स में और डिस्टेंस है किलोमीटर में। Is that clear? 1 मिनट टाइम में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5। दिस इज द मोशन ऑफ अ कार, कि उस कार ने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। अब हम इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट्स वेरी इजी। अब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो गई, क्या क्या? डिस्टेंस एंड टाइम। समझ में आ गया? और बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारा जो ग्राफ पेपर होता है उसमें हमने छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स देखे हैं ना, आप लोगों ने सबने देखे हैं। बच्चा ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये जो हमारा सिंगल ब्लॉक होता है, इट इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर, याद है? फिर इसके अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, फाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्रेजेंट द 2 यूनिट्स। एक को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और एक को हम लेंगे वाई एक्सिस पे, और हमारी दोनों ही क्वांटिटीज क्या हैं? पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम किस तरफ लेंगे? ओ एक्स ओ वाई। हम ओ वाई डैश ओ एक्स डैश यूज नहीं करेंगे। सो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड बिफोर दैट वी हैव टू मेक द स्केल, कि भाई हम कितने सेंटीमीटर में किस चीज़ को क्या शो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट वी विल राइट द स्केल। इट इज योर स्केल। टाइम 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये हमने हमारा स्केल लिया है। एंड डिस्टेंस में 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? हमारा 1 स्क्वायर बॉक्स। ओके, अब देखो बच्चा, हमने ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस पे हमने लिया हमारा टाइम, दैट इज गिवन इन मिनट्स, ओके। और ऑन वाई एक्सिस दैट इज ओ वाई, वी हैड टेकन द डिस्टेंस दैट इज गिवन इन किलोमीटर। समझ में आ गया? अब हमारा 0 ऑरिजिन है, ठीक है, 0 हमारा यहीं पे है, हमारे ओरिजिन पॉइंट पे। उसके बाद हमने गैप लिया 1 सेंटीमीटर का, दैट इज हियर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 एंड सो ऑन। इन द सेम मैनर ऑन द वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? अब हमारी टेबल में हमने ये देखा था कि 0 टाइमिंग पे वो 0 किलोमीटर कवर करता है, सो वी ऑलरेडी हैड पुट अ मार्क हियर। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा जो कार है वो 1 किलोमीटर पे क्या करती है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है। तो हमारे यहाँ की लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है।
we are using the scale, okay, and from here we are just making a line here, and the point where both the lines intersect each other, we will put a point here. Is that clear? Fine. And here you have to write 1 minute 1 kilometer, and further we have to do the same with the 2 minute 2 kilometer. Then you again have to draw the line, and from here you have to draw the horizontal line. और जब ये दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर फिर आप एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और ऐसे हम पूरे के पूरे उसके साथ करेंगे। जब हम पूरे के साथ करते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रेट स्लोप, दिस इज द स्ट्रेट स्लोप। दैट मीन्स कि हमारी जो कार की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो कंटिन्यू एक ही स्पीड से कार चल रही है। दिस इज योर स्लोप ऑफ स्पीड। आपका जो स्लोप है इट इज शोइंग दैट द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। इज दैट क्लियर एवरीबडी? फाइन। अब देखो, अगर हमारी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो ऐसे आता है। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा स्लोप। इसको हम कंपैरेटिव भी स्टडी कर सकते हैं, एंड वी आर हैविंग सच न्यूमेरिकल्स इन आवर एक्सरसाइज पार्ट, ओके, एंड वी विल डिस्कस इट देयर। फाइन। लेकिन अगर हमारी गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, देन हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसे भी हो सकता है। समझ में आ गया? दैट मीन्स दिस इज इन द यूनिफॉर्म स्पीड एंड दिस इज इन द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इज दैट क्लियर? लेकिन मान लीजिए टाइम के साथ साथ आपका कोई डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रहा है कोई भी व्हीकल, ठीक है। आपने टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है, आपका टाइम का टाइम बढ़ता जा रहा है, बट देयर इज नो डिस्टेंस कवर्ड बाय योर व्हीकल, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। With respect of time, there is no change in its position. Is it clear everybody? Students देखो, ये तो हमारी छोटी यूनिट्स थी। हमारी टेबल में आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, बहुत छोटा डिस्टेंस था। 1 किलोमीटर को हमने 1 मिनट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 सेंटीमीटर से। बट समहाउ इफ़ वी आर हैविंग सच प्रॉब्लम्स दैट कि हमारे जो फिगर्स हैं वो बड़े हैं, तब हम कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई टू understand that. Students, if the distance time graph is straight line, it indicates that the object is moving with constant speed. Fine. Is it clear? If the speed of the objects keep changing, the graph can be of any other shape. I told you that. Okay. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। This is the reading of the odometer. Fine. अब देखो, this is the time and this is the odometer reading and it is the distance from the starting point. अब देखो 8 बजे हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, तब हमारे ऑडोमीटर का रीडिंग क्या है? इट इज 36,540 किलोमीटर्स, एंड हियर वी डिडंट कवर एनी डिस्टेंस, बट 8:30 पर 8:30 पर हमारी ऑडोमीटर का रीडिंग हमें शो करता है इट इज़ 36,560। दैट मीन्स हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 20 किलोमीटर्स। फिर 9 AM, 9:30, 10, दैट मीन्स अब हम कंटिन्यूटी में 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय योर व्हीकल इज 80 kilometers, but how can we prepare the 80 kilometer distance on a graph paper? Is it convenient? Not yet. So students, the total distance covered by the bus is 80 kilometers. If we decide to choose the scale, जैसा हमने पहले ग्राफ में चूज किया था 1 kilometer 1 centimeter, we shall have to draw an axis of length 80 centimeter.
Fine, this is not possible on the paper sheet. So what we have to do, we have to take the scale, that is 10 kilometer is equals to 1 centimeter. ये अब हमारे लिए सही रहेगा. 80 सेंटीमीटर का शीट तो कहाँ से लाएंगे, ठीक है. It will be required as a length on the x-axis and it should be just of 8 centimeter or on the y-axis जहाँ पर भी आप उसको ले रहे हैं. This is quite convenient for us. Fine. What we have to do? Again we have to draw the x-axis, y-axis. यहाँ पर हमने x-axis पे हमने time लिया and time is given in, that is your 8:30 a.m., 9 a.m. Fine. And here we had taken the distance and this is our y-axis and this is your origin. अब 8 बजे हमारी बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 0. So it is here. But at 8:30 our bus covered the 20 kilometer distance. Fine. अब स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर हमने ग्राफ क्या लिया है, हमने ग्राफ का स्केल क्या लिया है, हमने स्केल लिया है कि हमारा जो 10 किलोमीटर है इट इज इक्वल्स टू 1 centimeter. तो here we had drawn 10 and above that after the 1 centimeter gap we just make the figure 20. Fine. So at 8:30 you have to draw the line here. Fine. अब यहाँ पर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कब कवर किया? 8:30 पे. और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारा ये पॉइंट मैच करेगा. इज दैट क्लियर? अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो गिवन टाइम है सिर्फ हम उसी से हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं. सपोज करिए आपको ना 8 और 8:30 के बीच का भी निकालना है. सपोज करिए आपको 8:15 का निकालना है कि 8:15 ने हमारी बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. तो यू जस्ट टेक अ मिड ऑफ द पार्ट. फाइन. एंड यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ लाइन हियर. ठीक है. तो अब ये लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी और ये हमने यहाँ से हमने डिफरेंस ले लिया. ठीक है. 8 और 8:30 इट इज 8:15. फ्रॉम 0 to 20 it is between क्या है 10. then it met here. that means 8:15 पे हमारी बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? it is 10 kilometer. Is it clear everybody? So students, we can say the distance time graph provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by the table. Fine. Everybody, the distance time graph is clear? Fine. Student, with this topic, this chapter completes here. In the next video, we will discuss the question answers of this chapter. Okay. Till then, everybody revise what we had learned in our previous and today's video. Okay. Take care everyone. Thank you.